Bismillahirrahmanirrahim. In this topic, we are going to discuss that what do you mean by the economic growth. Economic growth actually represents one of the indicator of the economic development or the progress of the country. First of all, we would like to define that what do you mean by the economic growth. Now, economic growth means that it is the development in your economy and how this development is going to be indicated. There are two definitions of the economic growth which are given. Number one is that the increase in the real GDP which occurs over a period of time. In the last lecture, you have discussed that what is the basic difference between the nominal GDP and the real GDP and how can you convert the real GDP from the nominal GDP. So according to this definition, कि आपके मुल्क का रियल जीडीपी बढ़ना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 50 साल, 40 साल, 60 साल, ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम मुसलसल इट शुड इंक्रीज, यानी कि फॉर एग्जांपल इफ in 1 year it is equal to 4.7%, in the other year it is 5.1%, in the other year, so it is a consistent increase. इसमें कुछ डिक्रीज भी हो सकता है but on average it should increase. अगर ऐसा होता रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम then it means आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. The second definition is that the increase in the real GDP per capita which occurs over time. Same definition है लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है, that is the GDP per capita. यहाँ पे था real GDP और यहाँ पे है रियल GDP पर कैपिटा. ये जो वर्ड है पर कैपिटा हम जहाँ पे भी यूज करेंगे इट मींस हम अपने रियल GDP को अपने पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे एक बंदे के हिस्से में कितने पैसे आते हैं. इन द फर्स्ट डेफिनेशन हम सिर्फ अपने पूरे के पूरे रियल जीडीपी की वैल्यू को ले रहे थे. इन द सेकेंड डेफिनेशन हमने अपने रियल जीडीपी को अपनी पॉपुलेशन के साथ डिवाइड किया है और वो आंसर अगर इंक्रीज करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन दैट इज टर्म्ड एज द इकोनॉमिक ग्रोथ. अब ये जो सेकेंड डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज टर्म सुपीरियर बिकॉज इट कंपैरिजंस ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड्स इज डिसाइड. हाँ, ये सुपीरियर है, वजह क्या है कि इसकी बेस के ऊपर हमें अपने per capita living standards का आइडिया होता है. So basically there are two definitions. One is simply the increase in the real GDP which occurs over a period of time, and the second definition is the increase in the real GDP per capita which occurs over a period of time. Now the second definition is considered superior. For example, आपको ये चीज का आइडिया इस एग्जांपल से हो जाएगा. चाइना का 2018 का जीडीपी था $1410 billion compared to the Denmark's of the $212 billion. So यहाँ पे देख के आपको आइडिया होता है कि किस मुल्क का जीडीपी ज्यादा है. ऑब्वियसली चाइना का ज्यादा है. इसका मतलब ये है कि चाइना के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है. लेकिन अगर हम यहाँ के चाइना की पॉपुलेशन को भी इनकॉर्पोरेट करें और डेनमार्क की पॉपुलेशन को भी इनकॉर्पोरेट करें, चाइना की पॉपुलेशन को इस 1410 से डिवाइड करें और डेनमार्क की पॉपुलेशन को इस 212 से डिवाइड करें, तो हमें ये आइडिया होगा कि चाइना में एक आदमी के हिस्से में कितने पैसे आते हैं और डेनमार्क में एक आदमी के हिस्से में कितने पैसे आते हैं. जब हम इस सेकेंड डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास आंसर आता है चाइना का it is equal to $1,110 and that of the Denmark is 33,750. So पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें लगता था कि चाइना में ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन अगर जब हम अपनी सेकेंड डेफिनेशन को लेंगे we have to divide this real GDPs with that of the population of the respective countries, that of the China and of the Denmark, and the result is the real GDP per capita, and this GDP per capita is representing that Denmark is more economically growth country as compared to that of the China. Now, growth in the real GDP does not guarantee growth in the real GDP per capita. अब अगर आपके मुल्क के अंदर रियल जीडीपी बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुल्क में रियल जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ेगा. वजह ये है if the growth in the population exceeds the growth in the real GDP per capita will fall because of the fact in the second definition you have to divide the population, but आपने population से divide कर देना है, अपने population को divide करना है अपने real GDP से. So अगर आपकी population के अंदर growth rate ज़्यादा है और आपके real GDP में growth rate कम है तो आपका real GDP per capita decrease कर जाएगा. So आपकी second definition, which is that the increase in the real GDP per capita is considered superior because it is going to represent a more realistic picture of the economic growth within your country. Growth has a goal.
अब economic growth, what is the importance of the economic growth? So the growth is an important economic goal because it means more material abundance and ability to meet the economizing problem. It means if your nominal GDP is more, it means more value of the goods has been produced, more income has been generated by your country. The more is the value of the goods which is being produced by the country. जितनी ज़्यादा चीज़ें आपका मुल्क प्रोड्यूस करेगा, जितनी ज़्यादा मालियत की चीज़ें आपका मुल्क प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब होगा उतनी ज़्यादा मटीरियल अबंडेंस होगी, उतना ज़्यादा इनकम जनरेट होगी और उतना ही इकोनोमाइजिंग प्रॉब्लम को आप मीट कर सकते हैं. इकोनोमाइजिंग प्रॉब्लम्स इट मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ द स्कार्सिटी. जितनी कम चीज़ें होंगी तो आपको उसकी चीज़ों की ज़रूरत को मीट करने में मसला होगा और जितनी ज़्यादा चीज़ें आप प्रोड्यूस करेंगे तो लोगों के पास उतने ज़्यादा वसाइल ज़्यादा आएंगे. तो ग्रोथ लेसन्स द बर्डन ऑफ द स्कार्सिटी. जितनी ज़्यादा आपके मुल्क के अंदर ग्रोथ होगी, आपके मुल्क के अंदर स्कार्सिटी की इशू कम होते जाएंगे. अगर वो चीज़ें आप अपने मुल्क में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यू कैन इम्पोर्ट इट फ्रॉम द अदर कंट्रीज. The only thing which you should have the income, and income you are being generated by the production of the goods and the services. So growth is always set as a goal because of the fact कोई भी गवर्नमेंट आती है उसका पहला गोल यही होता है that we have to develop the economic growth, we have to bring the economic stability within the country, and we have to generate the employment opportunities for the people so that they can generate the income. So growth is always set as a goal all for the firms, for the governments, both at the micro and the macro level. There is some arithmetic of the growth. Arithmetic of the goal is a simple rule. It's a very simple rule which is being used in order to have a rough idea. It is termed as the rule of the 70. Rule of the 70 states that हम क्या करते हैं, we have to find out the approximate number of the years required to double the real GDP. For example, पाकिस्तान का जो real GDP का growth rate है, it is about 4.7%. ठीक, अब ये जो 4.7% है, हमें कितने साल लगेंगे अगर हम 4.7% को मेंटेन करते हैं कि आज पाकिस्तान का जो ग्रोथ, पाकिस्तान के पास जितनी चीज़ें हैं हम उतनी से दुगनी चीज़ें प्रोड्यूस करने के काबिल हो सकते हैं. तो सिंपली हम क्या करेंगे कि 70 को 4.7 से डिवाइड करेंगे. द आंसर इज इक्वल टू द 15.9. इसका मतलब है अगर हमारा ये ग्रोथ रेट मेंटेन रहता है तो हमें तकरीबन 16 साल लगेंगे कि आज जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं लैंड, लेबर और कैपिटल के, हम उसको डबल करने के काबिल हो सकते हैं. तो सिंपली यू हैव टू जस्ट डिवाइड your annual percentage rate of the growth with that of the 70, and the result is that the approximate number of the years which is required to redouble the real GDP, and this is termed as the rule of the 70. The arithmetic of the growth is impressive because it gives us a rough idea that how much years it would take to double that growth. Using the rule of the 70, a growth rate of 2% annually would take 35 years for the GDP to double, but a growth rate of 4% annually would only take about 18 years to double the level of the GDP. So simply हमें एक rough idea देता है कि आपका आज जो ग्रोथ रेट है अगर आप इसको मेंटेन रखते हैं तो आपको कितने साल लगेंगे अपने मुल्क में लेवल ऑफ प्रोडक्शन को डबल करने में. The rule of the 70 uses the absolute value of the rate of the change. It means, so for example, if it is equal to 4.7% तो हम उसको absolute करेंगे, that is equal to the 5%, तो हम 70 को 5 से divide करेंगे and divide it into the 70, and the result is the number of year it takes the underlying quantity to double. कि आज मुल्क के अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको डबल होने में कितना टाइम लगेगा, आज हमारे पास इतनी सड़कें हैं उसको डबल होने में कितना टाइम लगेगा, आज हमारे पास जितने स्कूल्स, कॉलेजेस और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डबल होने में कितना वक्त लगेगा. तो सिंपली आपने क्या करना है, वट एवर योर ग्रोथ रेट इज उसको अपने एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना है और 70 से उसको डिवाइड कर देना है. जो भी आपका पास आंसर आएगा, इट इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स दैट योर कंट्री वुड टेक in order to double the level of the GDP. Main sources of growth. The main sources of growth are the increasing the inputs. हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे जनरेट होती है? हमारे जो सोर्सेज ऑफ ग्रोथ हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक होते हैं इंक्रीजिंग इनपुट्स और इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंक्रीजिंग इनपुट्स. या नहीं, हमारे पास 3 रिसोर्स होते हैं. एक्चुअली वी हैव गॉट 3 रिसोर्सेज जिससे हम अपनी ग्रोथ को जनरेट कर सकते हैं. वन इज द लैंड, अदर वन इज लेबर एंड थर्ड वन इज द कैपिटल. अब लैंड, लेबर और कैपिटल के साथ हमने जो भी ग्रोथ करनी है हमारे पास उसके आगे से 2 तरीके हैं. सबसे पहले कि हमारे पास नया लैंड, नई लेबर और नया कैपिटल मार्केट के अंदर आए.
हमारे पास नया लेबर और नई कैपिटल तो मार्केट में आ सकता है, लेकिन नई लैंड मार्केट में नहीं आ सकती, बिकॉज लैंड इज द फिक्स्ड कैपिटल। हम लैंड के जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास फिक्स हैं। लैंड के केस में हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन बचता है वो ये होता है दैट वी शुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। हम अपने लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। एज यू कैन सी देयर आर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स क्या होती हैं कि जो हमारे पास लैंड होती है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक, दो सोर्सेज होते हैं, या तो हमारे पास नए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाए, जहाँ तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हम उसी की बेस के ऊपर अपनी ग्रोथ को एनहांस कर लें। अब 1/3 ऑफ द जो अमेरिका की ग्रोथ है वो कम्स फ्रॉम द मोर इनपुट्स, नए इनपुट्स आते हैं, और 2/3 आती है फ्रॉम द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आप अपनी जो लैंड लेबर और कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। एंड व्हाट यू मीन बाय द प्रोडक्टिविटी? इट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क व्हिच इज बीइंग डन बाय अ वर्कर इन 1 आवर। जो 1 घंटे में आप काम करते हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है ना, एक्चुअली दैट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्टिविटी। जितनी ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी, जितने ज़्यादा आप इनोवेशन, जितने ज़्यादा स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी आपका रिटर्न बढ़ता जाता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज ओनली दिस फैक्टर, इज द लेवल ऑफ द प्रोडक्टिविटी। उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, दैट्स व्हाई दे अर्न मोर, और यहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है, दैट्स व्हाई वी अर्न लेस। So this is a brief idea that what do you mean by the economic growth. अब economic growth क्या होती है? It is simply one of the indicators, not the actual indicator. Because economic growth आपको सिर्फ ये बताती है कि आपके मुल्क में कितनी मालियत की चीज़ें बनी हैं। अब कितनी मालियत की चीज़ें बनी हैं that doesn't represent कि आपके मुल्क के अंदर के एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हुई है। और जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एक सिंपली रिप्रेजेंट करती है एक वैल्यू को कि आपके मुल्क के अंदर कि कितनी मालियत की चीज़ें बनी हैं। अब लोगों को उसका क्या फ़ायदा हुआ है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन ये उसके रेफरेंस में हमें कोई आइडिया नहीं देती। उसके लिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन को यूज़ करते हैं, या उसके लिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूज़ करते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हमारे पास चीज़ें आती हैं दैट व्हाट इज़ आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारे पास हमारा लिटरेसी रेट क्या है, हमारे पास हमारी डिफरेंट लाइक सिचुएशंस क्या हैं इन द फॉर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम, और जिसकी बेस के ऊपर हमारे मुल्कों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अब वहाँ पे जो 4 सिचुएशंस होती हैं वो ये होती हैं कि या तो दे आर रैंक्ड वेरी हाई, और दे आर रैंक्ड हाई, मीडियम, लो, या कुछ मुल्कों का डाटा अवेलेबल नहीं होता। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है वो हमारे मुल्क के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जैसे इन केस ऑफ द पाकिस्तान लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेंजेस अबाउट 60 to 65 ईयर्स, एंड हमारी जो एजुकेशन लेवल है, हमारा लिटरेसी रेट क्या है उसकी बेस के ऊपर, या हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि एक बंदा एक साल में कितनी मालियत की चीज़ें कितने कमाता है, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी बेस के ऊपर एक्चुअल किसी मुल्क की तरक्की का पता चलता है। दिस कंसेप्ट इज मेयरली मॉनेटरी फिनोमेना, और इससे हमें सिर्फ ये आइडिया होता है कि हमारे मुल्क में कितनी मालियत की चीज़ों का आइडिया हो, मालियत की चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, और हमारे पास और अगर वो वाली वैल्यू बढ़ती जा रही है, इट मीन्स कि जी हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट इज समथिंग दैट इज डिफरेंट। ग्रोथ इज लाइक दैट कि जैसे एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, उसके जो फिजिकल अपीयरेंस में जो चेंजेस आती हैं दैट इज द ग्रोथ। डेवलपमेंट उसकी होती है उसकी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट, वो होगी उसकी एजुकेशन से, उसके स्किल से, उसकी तरबियत से। तो द बोथ ऑफ फिनोमेनास आर डिफरेंट। सो हम इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ ये लेते हैं कि हमारे मुल्क में कितनी मालियत की चीज़ें हैं, कितना हमारे पास पैसा है, जबकि डेवलपमेंट में लेंगे कि ये वाला पैसा हमारे मुख्तलिफ लोगों में, मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरीके से इम्प्रूव करता है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो बेसिकली ये एक आपका ग्राफ आइडिया, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दिस फिनोमेना इकोनॉमिक ग्रोथ आगे हमारे डिफरेंट लेक्चर्स में डिफरेंट टॉपिक्स में यूज होगा, जिसमें हम स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। दैट्स व्हाई दे हैव गिवन अ ब्रीफ आइडिया दैट व्हाट यू मीन बाय द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट आर द बेसिक 2 definitions and what is the basic rule of 70 and what are the basic sources of the economic growth in this economy.